Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today, date is uh, 7 January 2022, and I am teaching you chapter number 17, the Earth and Sky. So, at the time when you are watching the video, student, please take out your EVS book and also take one rough copy with you so that you can note down the important points from the board. Okay, so let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video, student, we discussed the solar system, the family of the sun, that is the sun, 8 planets and their moons, that is known as solar system. After that I discuss with you that there are millions of stars in our universe, but sun is the only star which is closest to our planet, that is Earth. And the next thing which we discussed, that the distance of the sun from the Earth is, that is the right distance. Due to this only the life is possible on the planet Earth. Okay, if the sun is very close to the Earth, so due to the heat of the sun, all the living things destroy, and if the sun is very far away from the Earth, then also the temperature on the Earth is very cool, and again the life of the living organism is not possible. So the distance of the sun from the Earth, that is the right distance, and only due to this the life is possible. जो अर्थ का, जो सन का अर्थ डिस्टेंस है बेटा, वो बिल्कुल राइट है, इसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग कंडीशन में है. अगर सन बहुत दूर होता अर्थ से तो अर्थ का जो टेम्परेचर होता वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता, तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती. ठीक है. और अगर सन बहुत क्लोज होता अर्थ के, तो सर आपको पता है ड्यू टू द हीट सन के लाइट भी मिलती है सन से हमें और हीट भी मिलती है. अगर सन बहुत क्लोज होता तो क्या होता, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन लिविंग बीइंग जितने भी हो जाते पेरिश हो जाते, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते, नष्ट हो जाते, खत्म हो जाते, तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती. ठीक है. सो लाइफ इज पॉसिबल बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज, दैट इज द राइट distance. Now how the sun help us. Now we will discuss how the sun help us in many ways. So now in today video we will discuss sun helps us in many ways. Okay, in today video we will discuss sun helps us in many ways. How due to the sun the life is possible on the planet, that is our planet Earth. ठीक है. आज की वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है बेटा, क्योंकि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, दैट इज द सन. ठीक है. और हाउ ड्यू टू द सन द लाइफ इज पॉसिबल ऑन आवर प्लेनेट. ठीक है. हमारे प्लेनेट पे लाइफ कैसे पॉसिबल हुई, सो दैट वी विल डिस्कस इन द टुडे वीडियो. सो फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, sunlight helps planets, क्या मैं प्लांट्स लिख दे रहा हूं, to produce
ठीक है। अब देखो, सन हेल्प अस इन मेनी वेज. हाउ द सन हेल्प अस? फर्स्ट पॉइंट इज सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड. सी, when we are talking about the living organism, so okay, in chapter number plants also I have already discussed this thing, so I am again telling you. We know as, for example, if we are talking about the living things, then we say plants. हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं. ठीक है, ठीक है. अभी जनरली हम एक एग्जांपल के उसमें लेके चलते हैं कि प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ लिविंग थिंग. सो द प्लांट्स आर ओनली द प्रोड्यूसर्स. Plants are only the producer. What does it mean? It means that the plants can prepare their own food. Plants क्या है, अपना फूड खुद बना लेते हैं. And how this is possible? This is possible due to the sunlight. Okay, this is possible due to the sunlight. Plants can prepare their own food in the presence of sunlight, and this whole process is known as photosynthesis. This we have already studied in chapter plant. Okay, the process by which plant can prepare their own food. यहाँ हम शॉर्टकट में इसको बात करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है कि सन की लाइट से how the sunlight help us in many ways. Okay, so plants, animal और human beings की अगर हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं. विद द हेल्प ऑफ ए सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, द प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. और ये हम लोग वहाँ पढ़े थे. एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो सन से रिलेटेड है, इसलिए मैं अभी पूरी डेफिनेशन भी नहीं बोल रहा हूँ. सो और लिविंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल, वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ. हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत से एक्टिविटीज करते हैं. ओके, सो फॉर दीज एक्टिविटीज स्टूडेंट, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द एनर्जी? सो फॉर ऑल दीज एक्टिविटी वी आर गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड विच वी आर ईटिंग. जो हम अपने डे टू डे लाइफ में इतनी एक्टिविटीज करते हैं बेटा, तो इस सारी एक्टिविटीज के लिए हमें ताकत, एनर्जी मतलब होता है ताकत. जैसे आप खेलते हो, कूदते हो, पढ़ते हो, घूमते हो, रनिंग करते हो, वॉकिंग करते हो. ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको लिफ्ट करते हो, उठा के इधर रख दिया उधर, तो इन सब के लिए जो तो आपको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो वो कहाँ से मिलती है? दैट एनर्जी वी आर गेटिंग बाई ईटिंग द फूड. एंड फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द फूड? वी आर गेटिंग द फूड फ्रॉम द प्लांट्स. फूड हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट्स पे. तो हमारे प्लेनेट पे जो सोर्स ऑफ फूड है वो क्या है? प्लांट्स है. इसीलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर की कैटेगरी में रखा गया. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये दोनों कैटेगरी लिविंग की, तो दे आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था. डायरेक्टली इनडायरेक्टली का क्या मतलब होता है. जैसे कुछ एनिमल्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं, लेकिन अगर हम लोग टाइगर का एग्जाम्पल लें तो टाइगर तो प्लांट खाता नहीं, लेकिन टाइगर भी जिंदा है. तो टाइगर क्या है? टाइगर उन एनिमल्स को खाता है जिन एनिमल्स को प्लांट खाते हैं. तो अगर प्लांट नहीं होता तो प्लांट खाने वाले एनिमल्स नहीं होते, और प्लांट खाने वाले एनिमल्स नहीं होते तो टाइगर कैसे सरवाइव करता? इसलिए एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हैं? दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स. दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, सो दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, तो अब ये हो गया क्लियर आप लोग को कि सनलाइट, हाउ सनलाइट इज वेरी यूजफुल ऑन आवर प्लेनेट. ठीक है, अगर सन की लाइट नहीं होती तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये फूड प्रिपेयर नहीं करते, और ग्रीन प्लांट्स अगर फूड नहीं प्रिपेयर करते तो अदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
वो टोटली मैंने जैसा कि आपको बताया वो टोटली डिपेंड किस में है, प्लांट्स पे ही डिपेंड है। तो वो फिर क्या खाते हैं, आ रही बात समझ में? दैट इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज द रीजन द सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू द लाइट ऑफ द सन, क्योंकि सन की लाइट से ही जो आपके प्लांट्स, जिसको हमने उन्हें किस कैटेगरी में रखा, प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में रखा, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, ठीक है। तो सन की लाइट नहीं होती तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता, तो आंसर होगा नो, बिकॉज हम सबको वर्क करने के लिए, बिकॉज वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डे टू डे लाइफ, तो सारे कामों को करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी किससे मिलती है, हमें फूड से मिलती है। अगर सनलाइट नहीं होती तो प्लांट्स फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते, और प्लांट्स फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते तो अदर लिविंग बीइंग्स भी नहीं होते। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब की लाइफ क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू द सनलाइट, क्योंकि सनलाइट से ही जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, और इसी फूड को खाने से हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है डिफरेंट वर्क्स को करने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। Next important point is it heats water and turns it into water vapor, and it turn it into water vapor. वाटर वेपर। नेक्स्ट है ऑन कूलिंग, this water vapor on cooling, this water vapor forms clouds which bring rain. So due to the heat of the sun, जैसा कि चैप्टर 16 चैप्टर में मैंने आप लोग को वाटर साइकिल बताई थी, क्योंकि जब हम लोग वाटर की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। मोर देन 72% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड ओनली 28% वी हैविंग द लैंड, जो ऑलरेडी चैप्टर के बिगनिंग में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन ऑन हीटिंग वाटर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन, ओके। और जब ये वाटर वेपर गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है तो ये बहुत लाइट इन वेट हो जाता है, इट राइजेस अप इन द स्काई, ठीक है। एंड व्हेन इट कम इन द touch or contact with a cool air, then again the water on cooling it change into a water, and these
tiny drops of a water join together to form the clouds. तो इसी की वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, तो वाई दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई हमने क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती. ठीक है, अगर क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि क्लाउड्स फॉर्म होने की वजह से ही आप लोग को रेन होती है. रेनी सीजन में बहुत बारिश होती है ना. सो दिस वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. अगर आप एक पेड़ लगाते हो बेटा और उससे पानी नहीं देते हो, पेड़ क्या हो जाता है, डाई कर जाता है, सूख जाता है. ठीक है, जैसे आपने अपने घर में प्लांट्स लगाए हैं तो प्लांट्स तब उसी सॉइल में लगते हैं जिस सॉइल में मॉइस्चर हो, मतलब पानी हो, नमी हो. जिस सॉइल में सूखी मिट्टी में कोई पेड़ लगा के देखो, वो पेड़ कभी नहीं लगता है. तो डैट इज द इम्पॉर्टेंट. और ये भी जो वाटर साइकिल है ये भी किसकी वजह से हो रही है, सन की लाइट की वजह से. अगर सन की लाइट नहीं होती बेटा, ठीक है, इफ देयर इज नो सनलाइट, अगर इफ देयर इज नो सनलाइट, सन की लाइट नहीं होती तो वाटर साइकिल नहीं होती. वाटर साइकिल नहीं फॉर्म होती तो ये क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते. क्लाउड्स फॉर्म नहीं होता तो रेन नहीं होती. रेन नहीं होती तो सारी की सारी सॉइल टूट के सैंड की तरह हो जाती. जैसे आप लोग ने राजस्थान के बारे में सोचना है, डेजर्ट एरिया. डेजर्ट एरिया क्या होता है बेटा, ऐसा एरिया जहाँ पे या तो बिल्कुल ही रेनफॉल नहीं होती या तो रेनफॉल होती है तो बहुत लेस होती है. एंड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन द सॉइल ब्रेक इनटू स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स और वो एरिया डेजर्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है. वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, क्योंकि सॉइल में वाटर होना बहुत जरूरी है, तभी सॉइल में प्लांट्स की ग्रोथ होगी. ठीक है, और पूरी वाटर साइकिल कैसे हो रही है, सन की लाइट से हो रही है. अगर सन नहीं होता तो क्लाउड्स फॉर्म होते, कभी नहीं क्लाउड फॉर्म होते. क्लाउड्स फॉर्म नहीं होते तो रेन नहीं होती. आप लोग एग्जांपल में ले लो डेजर्ट एरिया इंडिया का, जो थार डेजर्ट है राजस्थान, वहाँ बारिश बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है. इसकी वजह से वहाँ बड़े बड़े आपको सैंड के, बालू के, रेत के बड़े बड़े टीले देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैंड ड्यून्स बोलते हैं. ठीक है, तो अगर क्लाउड्स नहीं होते, रेन नहीं होते, तो जो अर्थ के सरफेस पे जितनी भी सॉइल है वो सन की हीट से ब्रेक हो जाती और सारी सॉइल किस फॉर्म में चेंज हो जाती, सैंड के, रेत बन जाता है उसका. और रेत में पेड़ पौधे नहीं लगते हैं. और अगर प्लांट्स नहीं होते तो आप लोग को अभी जस्ट मैंने बताया है कि प्लांट्स नहीं होते तो हमें फूड कैसे मिलता. फूड नहीं होगा तो हम जिएंगे कैसे. तो दैट इज द रीजन सन की लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्यू टू सन लाइट ये जो वाटर साइकिल की प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होती रहती है. एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस द क्लाउड्स आर फॉर्म. और इस प्रोसेस की वजह से ही क्लाउड्स फॉर्म होते हैं. क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो रेन होगी, रेन होगी तो लोग क्रॉप्स लगाएंगे, प्लांट्स लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, तभी तो पॉसिबल है. अगर रेन नहीं होगी तो सॉइल ब्रेक होके सॉइल ब्रेक हो जाएगी, सैंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी. जैसे कि थार डेजर्ट में है, राजस्थान में है, वहाँ बारिश नहीं होती तो इतना ज़्यादा सैंड, बालू, रेत कैसे हो गई, क्योंकि जब कंटिन्यूअस हीट से जो सॉइल थी वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई. आ रही है बात समझ में. सो ये जो सेकंड पॉइंट है, इट हीट वाटर एंड टर्न इट इनटू अ वाटर वेपर. ऑन कूलिंग दिस वाटर वेपर फॉर्म क्लाउड्स विच ब्रिंग रेन. सो रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. अगर पानी नहीं होता, अगर बारिश नहीं होती तो पेड़ पौधे नहीं होते. अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो फूड नहीं होता, बिकॉज द प्लांट्स आर द ओनली प्रोड्यूसर्स. वो ही अपना भोजन खुद बना सकते हैं. और प्लांट्स नहीं होते, फूड नहीं होता तो कोई भी नहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता.
Okay, we will continue this in the next video. Thank you.